Earlier, there used to be a problem what to choose, NCRT books or reference book, from where to study, online, offline, tuition जाए, school जाए, क्या करे क्या ना करे. Now, since past few years, there has वो पुरानी क्वेश्चन तो है ही. There is now a new problem, bigger problem, where we think what should we focus on? Should we study for boards? Should we study for CUT? When should we study for boards? When should we study for CUT? So don't bother when you can study for both of them together and you can score good marks in both the exams, because I am here for you. Drishti is here for you. We have launched this particular course, that is Sports plus CUT course, and I am your commerce teacher. I'm going to teach you accountancy, business studies, and your economics. So this is the first class for you, right? And today we're going to see the first chapter from the business studies, that is nature and significance of management, and we're going to study it in that way. First, we will see the theory portion, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो. Then we will analyze it, we will understand the important keywords, and then we always think ना कि CUT साथ में कैसे पढ़ेंगे. तो CUT is MCQ based and boards में भी MCQ आते हैं पहली बात, और थ्योरी भी आती है. तो मुझे बोर्ड्स भी पढ़ाना है और CUT भी, और मैं दोनों करा दूंगा और हमें पता भी नहीं चलेगा अच्छा हमने दोनों की प्रिपरेशन कर ली. देयर इज अ मीम, अच्छा मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो वाली हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, क्योंकि आपकी सिलेक्शन भी अच्छे कॉलेज में होगी, राइट? सो as I said, Boards plus CUT course, Business Studies. I am Rahul Kushral. Let us start with the first chapter, that is your nature and significance of management. So the first chapter talks about your the word management, right? तो हमने हमेशा सुना है यार तुम खुद से मैनेज कर लो, या फिर मेरा मैनेजर आया है. ऐसे हमारे घर पे हमारी दीदी, हमारे भैया, हमारे पापा, हमारे मम्मा जो काम करते हैं, whoever is working, they feel like they always used to say यार मैनेजर से बात हो गई, मैनेजमेंट से ये इशू हो गया. Now what is that? For that, first we have to analyze what do we exactly mean by the word management. So can anybody tell me? I can see your chats. You can tell me. So how this class will work? I have a tab in front of me. We are live right now. You can always put your doubts in this particular section. You have that option of the live chat. I will see those doubts and I know आप relevant doubts पूछोगे और मैं बिल्कुल उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? But introduction के बाद. So फिलहाल let us start with the meaning of management and let us make our class very interactive. So management क्या है? Manage करना. So management क्या है? एक कला है. It is an art. So इसकी definition क्या होती है? It is an art of getting things done. एक आर्ट है जिससे हम चीजें करवाते हैं लोगों से. डन, थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लोगों से करवाना, थ्रू अदर्स, effectively and efficiently. So what did I say? मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने की किन दो तरीकों से? पहले तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली. तो हमें कितना समझ आया? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, राइट? तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैनेजर, राइट? लेट अस टेक अ बेसिक एग्जांपल. ये एक मैनेजर है. फॉर एग्जांपल I am a teacher, there must be a manager above me, right? So there's a manager above me and we have a teachers, and this manager has 3 teachers. One of the manager teaches, sorry, one of the faculties or teacher teaches commerce, and you know who that teacher is? One of the faculty or teacher teaches science and one humanities. Now what is the role of the manager here? The role of a good manager here is to combine them, combine in the sense they should be unified, all of them, right? Manager should be humble, but the main role of management or the manager would be to getting the classes done through these teachers effectively and efficiently, right? So manager का role क्या हुआ?
कि काम करवाना है, ठीक है, इफेक्टिवली भी कराना है और एफिशिएंटली भी कराना है। तो क्या, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मैनेजर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है? बिल्कुल है, ठीक है। तो यस, इफेक्टिव मैनेजर भी है एंड एफिशिएंट भी है। बट सर हुंदा की है, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी? सो हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, राइट? सो इफ यू सी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है, इफेक्टिवनेस में हम क्या बोल रहे हैं? अचीविंग गोल्स एंड कंप्लीटिंग टास्क। इतना याद रखना। इफेक्टिवनेस मतलब वी हैव टू कंप्लीट आवर गोल्स, वी हैव टू कंप्लीट आवर गोल्स ऑन टाइम। सो टी से इफेक्टिवनेस में देयर कम्स अ टी, सो रिमेंबर टाइम, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, कि टाइम पे हमारा जो काम है वो पूरा हो रहा है। तो इफ आई एम टेकिंग योर क्लास और मैंने टाइम पे आया, टाइम पे क्लास ले ली, दिस इज व्हाट द क्लास इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है, समझ आया? कंप्लीटिंग द टास्क इन टाइम, दैट इज व्हाट अचीविंग योर गोल इन टाइम, दैट इज व्हाट इफेक्टिवनेस इज। Regardless of the resources used, it focuses on doing the right things. So I'm doing the right things by teaching you on time, I'm completing your classes on time, so then I am effective. मैं टाइम पे क्लास ले ली, टाइम पे क्लास खत्म कर दी, ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ा दिया जितना आज पढ़ाना था, तो ये हो गया इफेक्टिवनेस। Example, a company produces 5,000 units, achieving its target, but at a high cost due to extra labor and electricity, where the manager was effective but not efficient. सर नहीं समझ आया क्योंकि अभी तक मैंने एफिशिएंट नहीं बताया, तो पहले एफिशिएंसी देखते हैं, फिर इस एग्जांपल को वापस समझेंगे। Let us see efficiency first and then we will understand what this example says. Efficiency refers to achieving goals with minimal resources. It focuses on doing things right. Now what is this? C. This C refers to cost cutting. Now, when someone will be efficient, if they are, when in the process of when they are doing their things, जो भी उनका काम है in their work, for example I am a teacher, I am teaching, right now I am teaching you, and कोई कारपेंटर है वो कारपेंट्री कर रहा है, ठीक है, कोई लेबर है वो साफ सफाई कर रहा है, सबके अपने अपने काम है, ठीक है। अगर वो उस काम को ऐसे करा जा रहा है जो उसकी एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज यूज हो रही है, अगर हम बोल रहे हैं कि यूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत एफिशिएंट है, इसका मतलब जितनी कॉस्ट कटिंग हो सकती थी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी वो हमने करी। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, राइट, अगर मैं इस बोर्ड को, अभी मैंने ब्राइटनेस मीडियम करी हुई है, अगर मैं हाई पे चला रहा होता तो मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से पावर ज्यादा यूज हो रही है, मेरे ऊपर 3 लाइट्स लगी हुई हैं जिससे आप मेरे को आराम से देख पा रहे हो। अगर यहाँ सिर्फ यहाँ पे अगर 6-7 लाइट लग जाए तो वो अननेसेसरी वेस्टेज है, तो क्या मैं एफिशिएंट हूँ? नहीं हूँ। तो एफिशिएंट तब होते हैं हम जब वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट व्हाइल डूइंग आवर वर्क, ठीक है। तो क्या समझ आया हमें? इफेक्टिवनेस इज व्हेन वी आर कंप्लीटिंग आवर टास्क ऑन टाइम, बट एफिशिएंसी इज व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क। तो देख सकते हो example, a company might try to cut costs but fails to meet production target, leading to lower effectiveness despite efficient use of resources. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इस वाले एग्जाम्पल में इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, इस वाले एग्जाम्पल में एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है। सर नहीं समझ आया, अब देखो, किसी ने काम टाइम पे कंप्लीट करा, टाइम पे कंप्लीट हो गया, यस, बट रिसोर्स वेस्ट हो गए, रिसोर्स वेस्ट हो गए हमारे, ठीक है। वी आर कंप्लीटिंग, दिस इज केस वन, case 1 says that we have completed the task on time but we are wasting our resources. So we are completing on time, that means yes we are effective, but we are not reducing our cost because we are wasting our resources, we are not using our resources properly, so we are not efficient. Effective and not efficient. Yes we are effective, no we aren't efficient. Now case 2,
सेविंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमने रॉ मटेरियल्स को सेव करा, यस, राइट, बट डिले इन रीचिंग टारगेट, बट हमारा जो हमें टारगेट अचीव करना था उसमें देरी हो गई. So we are using the resources properly. That means we are reducing our cost. So yes, we are efficient, but we are not completing our work on time. So that means we are not effective. I know that आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. बहुत ही अच्छी बात है. इस एग्जाम्पल को नोट कर लो. And if you have any doubt, you can ask. I am seeing your doubt, right? So this will be the way. जैसे मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, right? So technically, I will never lie to you, right? So this is a video for your demo purposes. तो आज तो कोई सच में कोई डाउट नहीं आएगा मेरे पास, ये आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको एक अपना पढ़ाने का तरीका समझा सकूं, और अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम पूरे साल साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर बोथ बोर्ड्स प्लस CUT, राइट? सो ऐसे ही जैसे मैंने इतना पढ़ाया, अब मैं आपको डाउट के लिए टाइम दूंगा 2 मिनट का. आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, वी विल डिस्कस इट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट? सो हम रियल तरीके से ही पढ़ाएंगे. तो गिविंग यू 1 मिनट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. All right, students. So in the real class, I will be saying the doubts of yours, and then we will going to solve that also. So now let us move ahead. So I hope effectiveness versus efficiency is now clear. Efficiency में C आता है, तो C से क्या रखना है? Cost cutting. Effectiveness में T आता है, तो from T we have to remember timely completion of the work, right? So now this was the first difference, which is asked in the boards also. In the last of the class, the last portion of the class, we're going to cover आंसर राइटिंग ऑल्सो, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और हमें कैसे लिख के आना है, राइट? सो फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द थ्योरी फॉर टुडेज क्लास, एंड नाउ लेट अस सी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. कि नाउ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? डेफिनेशन क्या थी? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स efficiently and effectively. For example, this manager who oversees 3 teachers is effective when she can timely complete the classes through all the teachers, through others, and she will be efficient when she is using the resources very well. So is she efficient and effective? Damn yes, right? So now let us start with the characteristics of management. Now the first characteristic is that management is a goal oriented process. Goal oriented process. Why do we manage things? What is the need of this manager to guide 3 teachers? Because our main goal is to कि हम बच्चों को पढ़ाएं, CUT क्रैक कराएं. To reach that goal, तो मैनेजमेंट का भी यही गोल हुआ ना, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. So we can say that management is a goal oriented process because it aligns towards achieving the organizational goal, like increasing sale, educating children, and or you can say educating children with special needs. तो एक गोल होता है, ओवरऑल गोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. फॉर एग्जाम्पल, दृष्टि's गोल इज टू एक्सेल इन द CUT फील्ड, इन द बोर्ड फील्ड, ताकि सारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. सेकंड, परवेसिव. Now, can anybody tell me what is the meaning of pervasive? What is the meaning of this word pervasive? It will be used in almost half of the chapters in your business studies domain. ये pervasive, what is pervasive? So pervasive का मतलब होता है which is applied almost everywhere और applicable everywhere. तो क्या समझ आया हमें कि परवेसिव का
मीनिंग होता है कि समथिंग which is applicable or applied everywhere. Now, if we talk about this applicability, now how management is pervasive. हमारे घर में हमारे मैनेजर कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स. एप्लीकेबल. ऑर्गेनाइजेशन में एक जो लेबर काम करते हैं उनके ऊपर एक उनका इंचार्ज होता है सुपरवाइजर. सुपरवाइजर को देखता है एक और मैनेजर, और उसके मैनेजर को टॉप का सीईओ भी देखता है. नाउ दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी लेवल पे हो आप, लेवल सबके निकलेंगे, राइट? तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. सो दैट्स व्हाई वी से इट इज परवेसिव. तो परवेसिव मतलब विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. यू कैन सी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल. मैनेजमेंट हर जगह चाहिए. इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट? नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर इसमें से भी अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन इफ वी टॉक अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स. तो अगर आप यहां पे देखोगे, it says that management is multidimensional. So first was goal oriented, second was pervasive, and third is multidimensional. It means the management has multiple dimensions. मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है ठीक है काम करो. No, not is that. मैनेजमेंट में भी डायमेंशंस होते हैं, और 3 डायमेंशंस हम पर्टिकुलरली पढ़ते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम का मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों को मैनेज करना, and management of operations is operations को manage करना. Now let us discuss this a bit more. Work management, achieving goals through planning and decision making. कि आपने टाइम पे एक प्लान बनाया, आपको क्या वर्क करना है, कब करना है, ये एक प्लान बनाया. That is management of work, planning and executing it, right? Management of people, वो काम जो आपने प्लान बनाया वो किससे करवाना है, from whom you are expecting that work to be done. That is your management of people, to motivate those people, to guide those people. For example, this particular manager was, when she was in charge of these 3 particular teachers including me, then this is management of people. And third is the management of operations. Now what is this? Efficiently managing the production process and input output flow. For example, in my case, my studio should be ready, right? This is operational. My mic should be working fine. This is also operations. So operational level की जो चीजें होती है वो operations में आ गया. Now this is what management is multidimensional: management of work, management of people, and management of operations. So I hope this is clear. Giving you 1 minute to note this particular first 3 characteristics of management down. इसके बाद हम next characteristics पढ़ेंगे. Alright guys, I hope you have noted it down. आपको पहली 3 characteristics, the first 3 characteristics are now very clear to you. I really hope so. Now the next particular characteristic is that management is a continuous process. Now tell me, this manager who is guiding, who is managing these 3 particular faculties or teachers, एक कोर्स आया CUT प्लस बोर्ड्स, वो खत्म हो गया, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर दिए, क्या काम खत्म? नेक्स्ट ईयर फिर से कोर्स आएगा, फिर से बच्चे आएंगे, उनको भी पढ़ाना होगा, तो मैनेजमेंट फिर से आएगी ना. तो मैनेजमेंट चलता रहता है. इट इज नॉट कि एक बार कर दिया हो गया. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. सो मैनेजमेंट फंक्शंस, अब ये कुछ फंक्शंस होते हैं व्हिच वी विल स्टडी इन द लेटर क्लासेस. तो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, वो ऑनगोइंग होते हैं और साइमल्टेनियसली सब बार बार रिपीट होते रहते हैं. मैनेजमेंट बार बार चलता रहता है, एक बार में खत्म नहीं होता. मैनेजमेंट डज नॉट एंड, management keeps on happening. Fifth, management is a group activity. क्या मैनेजमेंट अकेले ही हो जाती है? क्या ऐसा हो सकता है?
मुझे बताओ, क्या मैनेजमेंट अकेले हो सकती है? कल्ले लगे पड़े? नहीं। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबके एफर्ट्स आए ताकि एक कॉमन गोल्स अचीव हुआ। छोटे एग्जांपल्स में जो हम अपना एग्जांपल ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कॉमर्स टीचर, मेरा गोल है कॉमर्स पढ़ाना, साइंस टीचर उसका एक अपना गोल है, ह्यूमैनिटीज टीचर का अपना गोल है। इन तीनों के गोल्स को कंबाइन किया तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हुआ, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, वन सेकेंड, या दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सब मिलजुल के ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवा पाते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सिक्स्थ, management is dynamic. Now, as I told you about pervasive also, dynamic is again one word जो 50% chapters में आता है, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए हमें। तो ऐसे हम words भी पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Words of the class, इस क्लास में हमने क्या सीखा? Pervasive मतलब applicability is everywhere. Now second is, after pervasive you can say second word is dynamic. Now what is this sir? ये dynamic क्यों होता है? What is this dynamic? Your sir is dynamic. क्या हम ये बोल सकते हैं? आई डोंट नो, वो आपकी जजमेंट है, कमेंट करके बताना, ठीक है? तो व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मींस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सर आप मतलब आप दल बदलू, वो वाला चेंजिंग नहीं, चेंजिंग टू द सिचुएशंस, राइट? अडॉप्टिंग और चेंजिंग विद द सिचुएशन। Like for example, us teachers previously we used to teach offline, for example, ठीक है? पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी तो हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। नया चैलेंज आया, नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आई दैट वी हैव टू टीच ऑनलाइन। नाउ दैट इज व्हाट? दैट इज अगेन लर्निंग समथिंग, चेंजिंग माई सेल्फ टू अडॉप्ट विद दिस डिजिटल बोर्ड, handwriting, coloring, right? Everything, giving you PDFs, making PDFs. This is what? This is me being dynamic, changing with the environment, with the needs of the present generation, so that's why we can say that management is also dynamic. Management भी तो ऐसे चेंज होगी ना, नई टेक्नोलॉजी आई, पहले MS एक्सेल यूज करना शुरू करा, फिर लोगों ने पावर बीआई यूज करा, अब क्या यूज होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, डीप सीक, कृत्रिम एआई, इतने सारे एआई आ चुके हैं, राइट? That's why we can say that management is dynamic as well. Now what is the seventh characteristic and the last characteristic of management as per your textbook? This is management is intangible. Now what is that? Management's effects are visible in organizational performance but cannot be directly seen. क्या आप मैनेजमेंट को आप आंखों से देखते हो? नहीं, हम रिजल्ट से देखते हैं कि उसने उसको अच्छे से मैनेज करा तो हमें रिजल्ट देखा। इंटेंजिबल इज समथिंग, आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, इंटेंजिबल विच कैनॉट बी डायरेक्टली सी, राइट? उसकी प्रेजेंस फील हो सकती है, जैसे गुडविल है, किसी की गुडविल है, उसकी प्रेजेंस फील होती है, पर गुडविल इज डायरेक्टली किसी को देख के गुडविल नहीं आती, राइट? सो दैट इज व्हाट? इंटेंजिबल। दैट मैनेजमेंट इज आल्सो इंटेंजिबल। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने, जल्दी जल्दी रिवाइज। First was first was, one second, yeah, first was management is a goal oriented process, कि management क्यों करते हैं? ताकि हमारे goals achieve, so that our goals can be achieved, that's why we are doing management. Second is management is pervasive. Pervasive means which is applicable everywhere, so management is needed at every type of organization and at all levels. Third, management is multidimensional. Management has 3 dimensions: management of people, management of work, management of operations, right? Then fourth, management is a continuous process, it keeps on happening, it does not end. Management is a group activity, सब group combine होता है तब goals achieve होते हैं. Management is a dynamic process, right? कि dynamic का मतलब आपको बताया, which keeps on changing, which adapts to the situation, जहाँ मैंने खुद की तारीफ कर दी थोड़ी सी, right? I hope you won't mind. And then management is intangible, कि intangible is something which cannot be touched or seen, but its presence can be felt, right? So this was the characteristics of management, and we are also done with the effectiveness versus efficiency, and we are also done with the exact meaning of management, right? Now we were doing effectiveness versus efficiency, and I hope you have got this. Now मुझे बताओ, should a manager be effective or efficient? My question to you is, should a manager be effective or efficient? Which is more necessary? दोनों में से ज्यादा क्या जरूरी है? बताओ. Giving you 30 seconds to answer.
tell me, I'm seeing your chat, tell me what will be more effective for a manager, what will be more better for a manager, which is the more better quality for a manager, effectiveness or efficiency. Batao. Giving you 30 seconds to answer this. Do let me know when you are done. Alright then. I hope this is clear now. Right? I hope this is clear. Alright. तो सपोज सम ऑफ यू आर राइटिंग की इफेक्टिवनेस चाहिए, सम ऑफ यू आर राइटिंग एफिशिएंसी. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही चाहिए. क्यों? अभी आपको बताया कि आपने रिसोर्सेज बचा लिए पर टाइम पे काम नहीं हुआ तो भी फायदा नहीं है. आपने काम कर लिया टाइम पे पर पैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो गए तो भी अच्छा नहीं है. तो वी नीड बैलेंस. सो दैट्स व्हाई एक क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक बताया है कैसे आप लिखोगे balance between effectiveness and efficiency. So if a question like that is asked from you, first they will say explain effectiveness and efficiency and write which quality is more important for a manager. So what you will write, that ideal situation will be achieving goals with minimal resources, high effectiveness and efficiency both. प्रॉब्लम क्या होगी? क्यों क्यों प्रॉब्लम होगी अगर हम एक को चूज करते हैं? प्रॉब्लम विद चूजिंग वन ऑफ देम. तो अभी आपको मैंने बताया focusing too much on efficiency, if you're focusing too much on reducing your cost, then it can lead to failure in meeting targets. आप पैसे बचाए जा रहे हो, कंजूसी करे जा रहे हो, तो आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा. By focusing solely on effectiveness, और अगर आप सिर्फ काम करने पे ही फोकस कर रहे हो तो आप वेस्टेज कर दोगे, हाई कॉस्ट बढ़ा दोगे. सो दोनों सिचुएशन ही आइडियल नहीं है. आइडियल इज व्हेन यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम, व्हेन यू आर बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन which you can write in the answer if somebody asks you a case study in which there is a situation कि आपको एक चूज करना है, what to choose, effectiveness versus efficiency. So you have to say that both are necessary, there should be a balance between effectiveness versus efficiency, right? So this was the topic for the today. If you have any doubt you can ask. अब हम इसके बाद देखेंगे कि केस स्टडी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू राइट द आंसर, एंड देन और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो आज हमने कवर करे. Right? So be ready. In 1 minute, we are going to start with this. Alright guys, so now let us discuss a case study. जिससे हम डरते रहते हैं सर केस स्टडी आ गई, ये नहीं होती सॉल्व. बहुत ही आसान है. इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी के बेस पे ही मैं आपके लिए केस स्टडी लाया हूँ, ताकि और मैं ऐसे ही करूंगा ताकि हम रिलेट कर पाए अपने टॉपिक से. फिर चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक ओवरऑल वर्कशीट भी करेंगे या फिर हम क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो मिक्स है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए. बट दिस इज द बिगिनिंग ओनली, दैट्स व्हाई वी विल फोकस पर क्लास, उस क्लास के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? And then in the last also I will give you a question to attempt on your own, right? So without any further delay, let us see this particular case. Now I hope this is visible. If it is not, I am genuinely sorry.
but no worries, I will zoom it for you and I will read this with you, right? All right, so you can see, I hope now it is visible, right? So the question says a school principal reduces electricity cost turning off lights early but compromise study hours. क्या बोला? तो मेन लाइन पढ़ो, स्कूल प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, सो रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन पेपर में भी अंडरलाइन दिस लाइन. ठीक है, बड़ी बड़े केस आते हैं, हमें मेन लाइन पे फोकस करना है. सो द फर्स्ट थिंग वी गॉट टू नो, वी हैव टू अंडरलाइन द मेन लाइन दैट रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स बट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टूडेंट स्टडी आवर्स. बट क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टडी आवर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. टीचर्स कंप्लेंट अबाउट डिम क्लासरूम्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी. तो मतलब प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है. नाउ यू टेल मी, इज द प्रिंसिपल एफिशिएंट और इफेक्टिव जस्टिफाई? मुझे पता है अब आप समझ जाओगे कि इफेक्टिवनेस है या इफेक्टिव एफिशिएंसी है, पर यहाँ पे बोला जस्टिफाई, तो वी हैव टू जस्टिफाई आल्सो, वी हैव टू राइट एज पर दी सीबीएसई रिक्वायरमेंट कि हमें आंसर लिखना कैसे होता है, राइट? तो दिस इज फ्रॉम द बोर्ड्स पर्सपेक्टिव. ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है. तो फर्स्ट थिंग, मुझे बताओ कौन सी लाइन है जो बता रही है कि या तो वो इफेक्टिव है या वो एफिशिएंट है, जो भी है वो पहले मुझे बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आई एम गिविंग यू 20 seconds. टेल मी, इज दिस प्रिंसिपल एफिशिएंट और इफेक्टिव? टेल मी. Giving you a hint, it is talking about reducing cost. See, electricity cost. So हमें क्या करना है, हमें वो एक पर्टिकुलर लाइन पकड़नी है, ठीक है? तो हमें वो लिखनी है पहले से इन्वर्टेड कॉमास में. तो हमें लिखना है reduces electricity cost, right? फिर हमें इसको अंडरलाइन करना है, फिर हमें लिखना है. तो try to write this in with your black pen and then with your blue pen, right? The main answer. Now I will try next बार से मैं भी आपको उसी कलर से लिख के दिखाऊं. Now what is this? Now if you are reducing cost, if efficiency में cost cutting की बात होती है, तो it means this line shows that the principal's focus is to reduce cost, therefore the principal is correct, efficient. तो प्रिंसिपल इज एफिशिएंट, कि भाई प्रिंसिपल पैसे बचा रहा है, हमारी कॉस्ट बचा रहा है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, मजा आ गया. नो. क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रही है? टीचर्स कंप्लेंट अबाउट डिम क्लासरूम्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी. बट आपका एंड गोल नहीं अचीव हो पा रहा, क्योंकि आप चाहोगे ना स्टूडेंट अच्छा करे, टीचर अच्छे से पढ़ाए, बट आपका टारगेट रीच नहीं हो पा रहा है टाइम पे. तो क्या आप इफेक्टिव हुए या नहीं? स्टूडेंट के स्टडी आवर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो क्या वो टारगेट अचीव कर पाएंगे जितना वो कर सकते थे? नहीं कर पाएंगे. सो फिर आप वही कोट करके लिख सकते हो, compromising study hours shows that principal is not effective. प्रिंसिपल एफिशिएंट तो है, पर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं हो पा रहा है. ठीक है, टीचर्स कंप्लेन कर रहे हैं, स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है. सो दिस इज व्हाट, ही इज नॉट इफेक्टिव, ही इज एफिशिएंट. कॉस्ट कटिंग आ गई, आग बंद करो, हल्की सी बोलो, एफिशिएंट कर दो, ठीक है. बट अगर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, अगर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, तो वो इफेक्टिव नहीं है. सो दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर. So I hope this is clear. Please note this down, how you have to attempt this particular question.
राइट। और लास्ट में अगर जैसे मान लो और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो जो हमने पिछली लाइन पढ़ी अभी, बैलेंस वन, दैट आइडियल सिचुएशन विल बी व्हेन द प्रिंसिपल अचीव्स the goal by reducing electricity in a way that does not affect the students' ability to learn and the teacher's ability to teach, right? तो आप ऐसे लिखोगे, आंसर को एंड करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ऐसे टिप्स भी आपको मैं देता रहूंगा, साथ में हम सारा कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन लेनी ही नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन, गिविंग यू 1 minute to note this down, then I will give you one question to attempt on your own as well. ऑल राइट देन, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, केस स्टडी भी देख लिया हमने, केस स्टडी ऐसे पूछी जाती है आपसे जनरली, ठीक है। एंड लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ this is a kind of a demo class, so we will do this question here only, otherwise I will give you to complete on your own as well, and I will see your answer as well। Right now, see, give an example where a manager is effective but not efficient। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, एंड ये PYQ है, बोर्ड्स में ये पूछा गया है ऑलरेडी क्वेश्चन कि आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है where a manager is effective but not efficient। Can you do that? Come on guys, can you do that for me? When a manager is known effective but not efficient, come on। चलो एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज देयर, यू कैन राइट, कैसे लिखोगे आंसर, यहां पे लिखोगे सपोज देयर इज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, हमें क्या बताना है कि वो इफेक्टिव है पर एफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब काम तो टाइम पे हो रहा है बट पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे कम नहीं बच सकते, ठीक है। तो मतलब काम वो टाइम पे करा रहा है। लिखो सपोज देयर इज अ रेस्टोरेंट मैनेजर एंड ही मेक्स श्योर दैट all the orders, even online orders, are fulfilled on time। चाहे ऑनलाइन ऑर्डर है या ऑफलाइन ऑर्डर है, बोथ आर फुलफिल्ड ऑन टाइम। दिस शोज, अब आप लिखोगे दिस क्वालिटी शोज इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया है हमारा कि इफेक्टिव है भाई मैनेजर, हमने प्रूव कर दिया, राइट। नाउ दे आर सेइंग, बट आप जैसे मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क आपके पक्के, बट दिस क्वेश्चन ऑल्सो सेड दैट ही इज नॉट एफिशिएंट। तो हाउ अ रेस्टोरेंट मैनेजर विल नॉट बी एफिशिएंट, मुझे बताओ। मैनेज कब होता है? जब एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज अच्छे से यूज होते हैं। तो अगर वहां पे रिसोर्स कौन हुए? उनके लोग, काम करने वाले सारे कुक्स एंड ऑल, ठीक है, और डिलीवरी बॉयज हो गए। तो आप लिख सकते हो बट 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 द स्टाफ इज ओवरवर्क्ड, स्टाफ is overworked
and extra delivery boys are there, कि जो नॉर्मल आपके कुक्स है वो तो आपके कम है और डिलीवरी बॉय ज्यादा है, तो ये क्या ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है? क्या ये कॉस्ट कटिंग है? नहीं। तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे दिस क्वालिटी shows, sorry, this shows that the manager is lacking the quality of efficiency. This situation shows that the manager is lacking what? Efficiency, क्योंकि पैसे नहीं बचा पा रहा, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर। बट आप कैसे लिखोगे? पहले फर्स्ट पॉइंट पे लिखोगे, ऐसे स्टार बना लेना है जो भी, और फिर बट में एक और पॉइंट बनाना। तो पॉइंट वाइज हमें आंसर लिखना है। इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल टू अ टीचर व्हेन यू राइट पॉइंट वाइज इन अ बोर्ड एग्जाम। आपको बहुत फायदा होगा, तो प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल। अगर आपका कोई अपना एग्जाम्पल है तो आप बिल्कुल बना के लिख सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड। आई नो यू गाइज आर रियली टैलेंटेड एंड आई नो आप तो अच्छे से, मेरे से भी बहुत अच्छे आप मेरे को एग्जाम्पल्स बता दोगे। यस, सो प्लीज if you want to note sir's example, you can. Giving you 1 minute. Right, students? I hope you have noted it down. सर का एग्जाम्पल आपने लिख लिया है, ठीक है? अपना एग्जाम्पल तो आप लिख ही लोगे, राइट? सो द एम वॉज द क्लास फॉर टुडे वॉज कि फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, then we tried to understand the difference between the effectiveness and efficiency, then we saw the characteristics of management, and then we attempted questions. So within an hour we will try to do things like this slowly and steadily, and we will win the race for sure. Trust me on this. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर होमवर्क भी करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करोगे स्लाइड से, ट्रस्ट मी, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। Nobody can stop you, and this is the truth you have to accept, right? But self study is also very important, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? सेल्फ स्टडी में जितना मैंने पढ़ाया ना उतना पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ उससे बाहर से कुछ नहीं आ सकता, गारंटी है सर की, ठीक है? नाउ व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस जो और बन सकते हैं इससे, राइट? पहले सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज, एक मार्क में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? फिर आपसे और क्या पूछ सकता है 1 मार्क्स में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, देन व्हाट एल्स दे कैन आस्क, दे विल से यू मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, एक्सप्लेन। दिस कैन बी कम फॉर 3 मार्क्स आल्सो, ठीक है? या फिर पूछेंगे एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आपको पर्टिकुलरली नाम देके लिखेंगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कमेंट, write a short note that management is multidimensional. Or even in 1 marks they can ask you what is management of people, what is management of operations, management of work, how management is a group activity, what do you mean by management being dynamic, what do you mean by the word pervasive, how management is pervasive, ठीक है? So, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एमसीक्यूज तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, और दैट एमसीक्यूज विल ऑटोमेटिकली हेल्प यू फॉर योर सीयूटी एग्जाम, बिकॉज सीयूटी इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू तो हम कर भी लेंगे, राइट? एक फर्स्ट एम दोनों में ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बाय हार्ट, ठीक है? सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करनी, हमें समझना है, तब हमें अटेम्प्ट करना है। दोनों पेपर बहुत प्यार से होंगे, ठीक है? फिर वो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड द केस स्टडी फॉर इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही है, तो वो क्या है? एफिशिएंसी नहीं है। पर अगर टाइम पे वर्क हो रहा है तो इफेक्टिव है। तो अगर हमें ये दो चीजें समझ ली ना, तो मैंने आपको ये लिखवाया है,
तो कुछ भी कर लोगे आप, हाँ या ना? इन दो चीजों को याद रखोगे ना, यूं हो जाएंगे क्वेश्चन, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है, राइट? सो these kind of questions can also be asked, and then the balance between effectiveness and efficiency, this was the question we attempted, right? कि एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिसिटी, उसको रिड्यूस करनी है, बहुत ही अच्छी बात है, चलो कॉस्ट बचा दी, उसी टाइम एफिशिएंट हो गया, बट फाइनल आउटकम क्या होगा प्रिंसिपल का? तो यही चाहेगा ना कि बच्चे अच्छा स्कोर करें, टीचर अच्छे से पढ़ाए, बट वो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स द प्रिंसिपल लैक्स इफेक्टिवनेस, राइट? एंड देन दिस क्वेश्चन, देन वेयर वी, अब ऐसे क्वेश्चन में होता है हमें खुद से दिमाग लगाना होता है, हमें देखो रूट लर्निंग करते तो ये कर नहीं पाते, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, हमने खुद से एक रेस्टोरेंट मैनेजर बना दिया, उसका केस बना दिया, तो केस बनाना सीखो, खुद से मेरे से बात करो कि अच्छा सर अगर ऐसे एक केस आ गया तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल लिखो, आई विल हेल्प यू ऑलवेज, राइट? तो दिस इज आवर वे ऑफ टीचिंग, ऐसे दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग पर्सनली, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक है आप दे सकते हो, कैसी लगी क्लास, आई होप अच्छी लगी हो, ठीक है? तो वेट मत करो, ज्वाइन करो, ऐसे ही सारा सिलेबस आराम से कंप्लीट कर देंगे, बोर्ड्स में खेलेंगे, फिर सीयूटी में खेलेंगे, और बहुत अच्छा भी करेंगे, राइट? तो गाइस, आई होप दिस सेशन was very productive for you, you got this, we got this together, so तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। आई एम राहुल गुजराल, विल मीट यू इन द कोर्स, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, एंड आई होप आई सी यू अगेन सून, बाय।